السلام علیکم ناظرین، ہم ایک سیریز آف ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلی ویڈیو تھی جس میں آپ کو ساتھ شیئر کیا تھا کہ 2025 آپ کی لائف میں ریولیوشن کا ایئر آ سکتا ہے کہ آپ 2025 کے اندر اپنی انکم کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے آپ کو 10 ویز بتائے تھے۔ پہلا وے فری لانسنگ، سیکنڈ وے کنٹینٹ کریٹنگ، اور آج تھرڈ وے بتا رہا ہوں آن لائن ٹیوشن۔ آپ آن لائن ٹیوشنز پڑھا سکتے ہیں۔ آن لائن ٹیوشنز 2025 میں ایک موسٹ گروئنگ انکم سورس ہے۔ اس میں آپ کم وقت میں زیادہ پارٹیسپینٹس، زیادہ بچے یا زیادہ اسٹوڈنٹس ورڈ یوز کروں گا، زیادہ اسٹوڈنٹس کو انگیج کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ چھوٹے شہر سے ہیں، چھوٹی جگہ سے ہیں، یہ اہمیت نہیں رکھتا، لیکن آپ کا اسکلفل ہونا اہمیت رکھتا ہے، آپ کا ایجوکیٹڈ ہونا اہمیت رکھتا ہے، آپ کا اپنے سبجیکٹ کا انتخاب اہمیت رکھتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پڑھانا، علم دینا ایک بہت ہی معزز پیشہ ہے، اور اگر آپ فزیکل پڑھائیں یا آن لائن پڑھائیں، یہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ تو آج کا یہ کنٹینٹ ہے کہ آپ آن لائن ٹیوشن کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور کس طرح آپ اس فیلڈ کے اندر انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ ٹیوشن کیا ہے؟ یوز دا گیجٹس کا استعمال کر کے، ڈیجیٹل پلیٹ فارم یوز کر کے، لائک زوم، لائک گوگل میٹ، لائک ٹیمز، لائک ادر اور واٹس ایپ، آپ کسی بھی اسکائپ، کسی بھی گیجٹس کا یوز کر کے، سوشل پلیٹ فارم کا یوز کر کے اسٹوڈنٹس تک اپنا نالج پہنچانا اور اس کے اگینسٹ اپنی ارننگ لینا، اسے بولا جاتا ہے آن لائن ٹیوشن۔ اس کے لیے نہ ہی ملک کی قید ہے، نہ ہی سرحد کی قید ہے، نہ ہی لینگویج کی قید ہے، اور نہ ہی اس کے لیے آپ کی کہہ لیں کہ انکم کی جنریشن کی قید ہے۔ آپ جتنی محنت کریں گے، جتنا آپ اس میں اسٹرگل کریں گے، جتنا آپ اسکلفل ہوں گے، جتنی بہتر آپ اپنے کو کریں گے، اتنی اچھی آپ ارننگ لے سکیں گے۔ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو بڑا سیٹ اپ چاہیے، جتنا اچھا آپ ایک ایک سیٹ اپ بنائیں گے، وہ آج آپ کو سکھائیں گے کہ سیٹ اپ کیا بنانا ہے، کس طرح کرنا ہے، وہ سب چیزیں سکھائی جائیں گی، لیکن اس سے پہلے اس کی اہمیت سمجھنا ہے۔ اس وقت مارکیٹ کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں بچوں کو باہر نکالنے کے، حالات آپ کے سامنے ہیں، اکنامکلی بھی بہت مہنگا ہوتا ہے، اور پھر نئی سے نئی چیزیں سیکھنے کے لیے بھی لوگ یہ کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹیچر، ڈفرینٹ انوائرمنٹ کے لوگ ساتھ اٹیچ ہیں۔ اپنے شعبے کو منتخب کرنا، کیا آپ کس شعبے میں پڑھانے جا رہے ہیں؟ آپ دینی چیز پڑھانے جا رہے ہیں، آپ تعلیمی پڑھانے جا رہے ہیں، آپ پروفیشنل پڑھانے جا رہے ہیں؟ اگر آپ دینی پڑھانے جا رہے ہیں تو آپ قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، تو آپ نے تعصب سے پاک ہو کے، کسی بھی طرح کی شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی سے پاک ہو کے لوگ یہ ایجوکیشن آپ سے لیں گے۔ اگر آپ تعلیمی میں پڑھانے جا رہے ہیں تو پروفیشنلزم لانا پڑے گا۔ آپ میتھس پڑھا رہے ہیں، آپ سائنس پڑھا رہے ہیں، اگر آپ پاک اسٹڈیز یا جغرافیہ پڑھا رہے ہیں تو ملک کے تعصب سے پاک ہو کے، اگر آپ ہسٹری پڑھا رہے ہیں تو اپنی ہر چیز کے تعصب سے پاک ہو کے چیزیں اپنے لوگوں تک پہنچانی ہیں۔ آپ اگر انگلش پڑھا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے لٹریچر طریقے سے پہنچانا ہے۔ اگر آپ پروفیشنل پڑھا رہے ہیں، کوڈنگ پڑھا رہے ہیں، آپ گرافک ڈیزائننگ پڑھا رہے ہیں، آپ کیا پڑھانا چاہ رہے ہیں؟ اپنے مضمون کا یا اپنے شعبے کا انتخاب سب سے اہم ہے۔ یہ نہیں میں فلاں کر لوں گا، فلاں کر لوں گا، فلاں، ایسے نہیں ہوگا۔ آپ جس چیز میں بیسٹ ہیں، جو چیز آپ دیکھتے ہیں کہ میری بہترین ہے، کہ میں اس طرح بہترین کام کر سکتا ہوں، اس پہ آپ نے جانا ہے۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس میں موسیقی پڑھا سکتے ہیں، آپ اس میں پینٹنگ کرنا سکھا سکتے ہیں، یہ جدید شعبہ جات ہیں، لیکن آپ نے اس کا سکل ہونا چاہیے۔ آپ جب لوگوں تک یہ چیز پہنچائیں گے تو پھر ہی یہ لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، اور جب لوگ اٹیچ ہوں گے تو آپ کی اس کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ لیکن سب سے اہم ہے کہ آپ نے تعصب سے پاک ہو کے یہ چیز کو، اپنے شعبے کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر آپ تعصب میں ہیں تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے، تعصب کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اپنی چیز پہ فوکس کرنا ہے، دوسرے کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنی، اس کو نالج دینا ہے۔ آپ نالج دینے والے ہیں، آپ لوگوں کا۔ نیکسٹ سٹیپ ہے کہ اس کا سیٹ اپ کیسے لگایا جائے گا۔ آپ کو سیٹ اپ کے لیے ایک لیپ ٹاپ چاہیے، یا آپ کو ایک اچھا پی سی چاہیے، کمپیوٹر چاہیے، جس کا کیم اچھا ہو، جس کے مائک اچھا ہو، جس کا ہیڈ فون اچھا لگا ہو، کیونکہ آپ نے صرف بات پہنچانی نہیں ہے، آپ نے لائیو ان کے ساتھ جانا ہے، ان کی بات بھی آپ تک پہنچے، ویڈیو کی کوالٹی اچھی ہو،
ये स्टार्ट के एक्सपेंस हैं जो या स्टार्ट की इन्वेस्टमेंट है जो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आप इसमें सबसे अहम ये है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। अगर आप गूगल जूम यूज़ कर रहे हैं तो उसका पेड वर्जन लें, अगर आप टीम्स ले रहे हैं तो पेड वर्जन लें। आप कोशिश करें कि व्हाट्सएप है तो उसका एक अच्छा हाई स्पीड इंटरनेट लें, और सबसे अहम है आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट हो। इलेक्ट्रिसिटी का इशू तो आपको यूपीएस अगर पाकिस्तान इंडिया में है तो इलेक्ट्रिसिटी को माइंड में रखते हुए अपनी क्लासेस अरेंज करनी है, क्योंकि उन वाले कोई इश्यूज़ नहीं है। जब आप ये चीज़ें माइंड में रखेंगे, शार्पली काम करेंगे, स्मार्ट काम करेंगे तो परेशानी नहीं होगी। तो ये नहीं हो सकता कि आज क्लास नहीं है जी, मेरी बिजली नहीं है, आज मुझे तो मेरी ताई बीमार है, मेरी चाची बीमार है, मेरी बेगम को ये हो गया, ये चीज़ नहीं है। सेटअप, आपका सेटअप सबसे अहमियत का हामिल रखता है। आप कैसा सेट लगा रहे हो, आपकी बैकग्राउंड कैसी है, तो ये चीज़ें बहुत अहमियत के हामिल है। इन पे वर्क करेंगे तो ही आपका सेटअप चल सकता है। तो सेटअप को बनाना है, मेंटेन करना है, क्वालिटी वाइज मेंटेन करना है, तसब से पाक मेंटेन करना है। अगर आप दीनी पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं या कोई और दीनी बुक पढ़ा रहे हैं तो उस हिसाब से आपने सेटअप को बनाना है। आपका जितना अच्छा क्यूट सेटअप होगा, जितना प्रोफेशनल सेटअप होगा, उतने ज़्यादा आपके व्यूज़ आएंगे, उतने ज़्यादा लोग आपसे अटैच होंगे। ये नेटवर्क आपका बनता चला जाएगा आपकी टीचिंग का। कोई भी एकेडमी डे वन पे नहीं चलती। आप देखते हैं लोग 10-20 लाख रुपए लगा के एकेडमी बनाते हैं और डेज लगते हैं। आप 50 लाख लगा के बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके बाद भी उसको रन होने में टाइम लगता है। ऐसे ही आपका सेटअप जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका ये स्टार्ट। नेक्स्ट स्टेप है कि इसका सेटअप कैसे लगाया जाएगा। आपको सेटअप के लिए एक लैपटॉप चाहिए, या आपको एक अच्छा पीसी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए जिसका कैम अच्छा हो, जिसके माइक अच्छा हो, जिसका हेडफोन अच्छा लगा हो, क्योंकि आपने सिर्फ बात पहुंचानी नहीं है, आपने लाइव उनके साथ जाना है, उनकी बात भी आप तक पहुंचे, वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो। ये स्टार्ट के एक्सपेंस हैं जो या स्टार्ट की इन्वेस्टमेंट है जो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आप इसमें सबसे अहम ये है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। अगर आप गूगल जूम यूज़ कर रहे हैं तो उसका पेड वर्जन लें, अगर आप टीम्स ले रहे हैं तो पेड वर्जन लें। आप कोशिश करें कि व्हाट्सएप है तो उसका एक अच्छा हाई स्पीड इंटरनेट लें, और सबसे अहम है आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट हो। इलेक्ट्रिसिटी का इशू तो आपको यूपीएस अगर पाकिस्तान इंडिया में है तो इलेक्ट्रिसिटी को माइंड में रखते हुए अपनी क्लासेस अरेंज करनी है, क्योंकि उन वाला कोई इश्यूज़ नहीं है। जब आप ये चीज़ें माइंड में रखेंगे, शार्पली काम करेंगे, स्मार्ट काम करेंगे तो परेशानी नहीं होगी। तो ये नहीं हो सकता कि आज क्लास नहीं है जी, मेरी बिजली नहीं है, आज मुझे तो मेरी ताई बीमार है, मेरी चाची बीमार है, मेरी बेगम को ये हो गया, ये चीज़ नहीं है। सेटअप, आपका सेटअप सबसे अहमियत का हामिल रखता है। आप कैसा सेट लगा रहे हो, आपकी बैकग्राउंड कैसी है, तो ये चीज़ें बहुत अहमियत के हामिल है। इन पे वर्क करेंगे तो ही आपका सेटअप चल सकता है। तो सेटअप को बनाना है, मेंटेन करना है, क्वालिटी वाइज मेंटेन करना है, तसब से पाक मेंटेन करना है। अगर आप दीनी पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं या कोई और दीनी बुक पढ़ा रहे हैं तो उस हिसाब से आपने सेटअप को बनाना है। आपका जितना अच्छा क्यूट सेटअप होगा, जितना प्रोफेशनल सेटअप होगा, उतने ज़्यादा आपके व्यूज़ आएंगे, उतने ज़्यादा लोग आपसे अटैच होंगे। ये नेटवर्क आपका बनता चला जाएगा आपकी टीचिंग का। कोई भी एकेडमी डे वन पे नहीं चलती। आप देखते हैं लोग 10-20 लाख रुपए लगा के एकेडमी बनाते हैं और डेज लगते हैं। आप 50 लाख लगा के बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके बाद भी उसको रन होने में टाइम लगता है। ऐसे ही आपका सेटअप जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका ये स्टार्ट। नेक्स्ट स्टेप है कि इसका सेटअप कैसे लगाया जाएगा। आपको सेटअप के लिए एक लैपटॉप चाहिए, या आपको एक अच्छा पीसी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए जिसका कैम अच्छा हो, जिसके माइक अच्छा हो, जिसका हेडफोन अच्छा लगा हो, क्योंकि आपने सिर्फ बात पहुंचानी नहीं है, आपने लाइव उनके साथ जाना है, उनकी बात भी आप तक पहुंचे, वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो। ये स्टार्ट के एक्सपेंस हैं जो या स्टार्ट की इन्वेस्टमेंट है जो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आप इसमें सबसे अहम ये है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। अगर आप गूगल जूम यूज़ कर रहे हैं तो उसका पेड वर्जन लें, अगर आप टीम्स ले रहे हैं तो पेड वर्जन लें। आप कोशिश करें कि व्हाट्सएप है तो उसका एक अच्छा हाई स्पीड इंटरनेट लें, और सबसे अहम है आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट हो। इलेक्ट्रिसिटी का इशू तो आपको यूपीएस अगर पाकिस्तान इंडिया में है तो इलेक्ट्रिसिटी को माइंड में रखते हुए अपनी क्लासेस अरेंज करनी है, क्योंकि उन वाला कोई इश्यूज़ नहीं है। जब आप ये चीज़ें माइंड में रखेंगे, शार्पली काम करेंगे, स्मार्ट काम करेंगे तो परेशानी नहीं होगी। तो ये नहीं हो सकता कि आज क्लास नहीं है जी, मेरी बिजली नहीं है, आज मुझे तो मेरी ताई बीमार है, मेरी चाची बीमार है, मेरी बेगम को ये हो गया, ये चीज़ नहीं है। सेटअप, आपका सेटअप सबसे अहमियत का हामिल रखता है। आप कैसा सेट लगा रहे हो, आपकी बैकग्राउंड कैसी है, तो ये चीज़ें बहुत अहमियत के हामिल है। इन पे वर्क करेंगे तो ही आपका सेटअप चल सकता है। तो सेटअप को बनाना है, मेंटेन करना है, क्वालिटी वाइज मेंटेन करना है,
तसब से पाक मेंटेन करना है। अगर आप दीनी पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं या कोई और दीनी बुक पढ़ा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपने सेटअप को बनाना है। आपका जितना अच्छा क्यूट सेटअप होगा, जितना प्रोफेशनल सेटअप होगा, उतने ज़्यादा आपके व्यूज़ आएंगे, उतने ज़्यादा लोग आपसे अटैच होंगे। ये नेटवर्क आपका बनता चला जाएगा आपकी टीचिंग का। कोई भी एकेडमी डे वन पे नहीं चलती। आप देखते हैं लोग 10-10, 20-20 लाख रुपए लगा के एकेडमी बनाते हैं और डेज लगते हैं। आप 50 लाख लगा के बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके बाद भी उसको रेंट होने में टाइम लगता है। ऐसे ही आपका सेटअप जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका ये स्टार्ट। कुछ टिप्स देना चाहूँगा, ये है मैं, बाकी तो आप मौसर तरीके से पढ़ाना है। आप मौसर तरीके से पढ़ाने से मुराद ये है कि आपने टूल्स यूज़ करने हैं। आपने पहले ही अपनी जो लेक्चर्स हैं उनकी स्लाइड्स बनानी है, प्रेजेंटेशंस बनानी है पावर पॉइंट पर, या ऑनलाइन प्रेजेंटेशन डिज़ाइंस बनाने वाले लोग अवेलेबल होते हैं। जिसे हम पहले बता चुके हैं, कंटेंट क्रिएटर्स अवेलेबल होते हैं, हमारी इससे पहले वीडियो होती है, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। वो आपको कंटेंट बना देंगे। उससे नेक्स्ट जाके हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाएंगे, ग्राफिक डिज़ाइनर से रब्ता कर सकते हैं। आपने अपनी तमाम चीज़ें क्लियर करनी है। आपने अच्छा फ़ोन यूज़ करना है, आपने अच्छा वॉइस का सेटअप यूज़ करना है। आप अप टू डेट हो। जब तक आप अप टू डेट नहीं होंगे, जदीद टूल्स नहीं यूज़ कर रहे होंगे, तब तक आप कामयाब नहीं होगा। ये मेरी हिंट है, ये मेरी आपको टिप्स हैं। अनलेस स्टार्ट तो ज़ीरो से करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगा। ये आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपकी ब्रेन की इन्वेस्टमेंट है, और ये हो जाएगा एक बार। जस्ट एक बार अगर आप इस पर कर लेंगे तो आप कामयाब होंगे, और ये कामयाबी मुस्तकिल बुनियादों पर चलेगी। ठीक है, इसमें सबसे अहम चीज़ है कि आपने अपनी मार्केट देखनी है। आप किस मार्केट में पढ़ाने जा रहे हैं। आप दीनी पढ़ाने जा रहे हैं, आप नॉर्मल एजुकेट छोटे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, आप प्रोफेशनल्स को पढ़ाने जा रहे हैं, उस तरह अपने आप को अप टू डेट रखना है। उसके मुताबिक टूल्स यूज़ करने हैं। जब तक टूल्स यूज़ नहीं करेंगे आप कामयाब। जी, मैंने आपके साथ ऑनलाइन बिज़नेस के हवाला से, ट्यूशन बिज़नेस के हवाले से बात की। पार्ट टाइम बिज़नेस नहीं है। आप टीचर हैं, ये पार्ट टाइम बिज़नेस नहीं है। आप इसको फुल टाइम कर सकते हैं, क्योंकि टाइम का डिफरेंस है। पाकिस्तान में टीचिंग क्या होती है, तकरीबन सुबह 8 से लेकर 2-3 बजे तक, उसके बाद फ्री हैं आप। तो आप उस टाइम ये काम कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट टीचर्स हैं, उनके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त मौका है कि वो इसको यूज़ कर सकते हैं। 7-8-10 टीचर्स मिल के ये एक्सपेंस कर सकते हैं। अगर आप एक साइट बनाते हैं तो आप जानते हो कि लोगों को पहले रजिस्टर्ड करें, लोगों तक अपनी बात पहुँचाएँ। 7-8-10 टीचर्स मिल के अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और अगर आप ये सेटअप बनाना चाह रहे हैं, इस सेटअप को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, तो हमारा अदारा आपको इसकी ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट फैसिलिटीज़ फ्राहम कर सकता है। हमारे अलावा आप खुद कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो हम आपको इसकी मुकम्मल फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन मैंने आपको पूरा तरीकाकार बता दिया है। इसके बाद भी ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आप देखते हैं कि आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो हम दे सकते हैं, और भी हज़ारों अदारे अवेलेबल है, वो दे सकते हैं। इसलिए आज की ये सेशन था टीचर्स के लिए, हमारे कौम के ममारों के लिए, उस्ताद सातिज़ा के लिए। ये सेशन बड़ा अहमियत का हामिल था। आपने मुकम्मल सुना। इसको बाकी अपने दोस्त सातिज़ा के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो सीख सकें। अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो इसको सीख सकें, अच्छे तरीके से अपनी अर्निंग जनरेट कर सकें। क्योंकि अगर उस्ताद खुशहाल होगा तो कौम खुशहाल होगी। और जितनी महंगाई है, जितनी हमारा अफरात ज़र बढ़ रहा है, जितने मसाइल हैं, उनके लिए साइड इनकम बहुत लाजमी है। और पौ में कमाना अहमियत का अमल नहीं है। इसलिए डॉलर्स में कमाने की तरफ आएँ, यूरोज़ में कमाने की तरफ आएँ, दरहम में कमाने की सूरत में आएँ। सऊदीया, यूएई, कनाडा, अमेरिका, इन तमाम ममालिक के स्टूडेंट्स आपके मुंतज़र हैं। वो आपसे पढ़ना चाहते हैं, दीन पढ़ना चाहते हैं, दुनियावी तालीम पढ़ना चाहते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं। उन तक अपना एजुकेशन, अपना पैगाम पहुँचाना लाजमी है। कराची, लाहौर, फैसलाबाद। सबसे आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपने ऊपर यकीन करें। इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। अल्लाह ताला के साथ किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देते। और इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। सजेशंस हो तो आप हमें सजेशंस दें। अगर आप कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगर बेहतरी के चांसेस हो, हमारे बेहतरी की तरफ बताएं। और इंशाअल्लाह ताला हम भी आपको ऐसी सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।